आचार्य खेनपोद मुझे को नमो बुद्धाय संगे चेतन सोजी चोनामला जानचो भरदो दानी क्या सोची तागे जिनसो जेबे सोनांगे डोला भंजे संगे संगे चेतन सोजी चोनामला जानचो भरदो दानी क्या सोची तागे जिनसो जेबे सोनांगे डोला भंजे संगे संगे चेतन सोजी चोनामला जानचो भरदो दानी क्या सोची तागे जिनसो जेबे सोनांगे डोला भंजे संगे 심제 동제 대화 대외 교단 대바라 저제 심제 동제 동아다 동아제 주다 심제 동제 동아네 대화 동바담 유다와라 저제 심제 동제 저단 예단 대외 동영 전보라 여러 심제 동제 대화 대외 저단 대바라 저제 심제 동제 동아제 저단 달바라 저제 심제 동제 동아네 대화 동바담 달바라 저제 심제 동제 내래 차단이 달외 동요 전보라 네바라 저제 심제 동제 대화 심제 동제 동아다 동아제 주다 달바라 저제 심제 동제 동아네 대화 동바 달바라 저제 심제 동제 내래 차단이다 동요 전보라 네바라 저제 담게 두제 샤제레소 신제메도 두제 분장바 세계 롬보 타브로 제베 샤게 열베 샤블라 차차로 강게 동브로 잔조 두제 소놈 히시 소비 존제제 두드레 제바 자첸도와 건드로 제로 다게 도브랑제 롬놈 동제 들베 두제메 라네 봄네 란젠 다르제 리네 세네 라모 제트마 lumso jubra zela chazalo dawa chuzo shaje serbo tashi lumbe chando tambe ze sandan jajen gedo zanjo sanjo reso nyenze sanzalo shono tobde me senge anga manga daro jezangen chivo debo chenan serbo Pendang nebran zela chanzalo jiden chedan tombra jawadan kana moto banze zumboy kordan donze tala kebaye jase chumra zela chazal korbe jawa nimbo mezene chimne zumde kala shime cheben namda jungdo nilene rabdo zumra zela chazal Sombe sancho dobra gomne neren sane jando lodo kawa jaze sombe tarje ne samde chane zela chanzal kama mene baba tanyo je manga taye jancho shindu
Children, Mambra, Sanjay, Sanjo, Zobra, Tela, Chatano, Tuje, Jola, Yodo, Zine, Varanasi, Lazo, Ninja, Chije, Kono, Kone, Dosa, Kibo, Sumla, Goze, Sanzala, Shinje, Gola, Gambra, Sarje, Mode, Tomba, Jodan, Jibe yudo dunando tuba yele jala jata Siba sumna peme yantenje Nando yobra chando chimbo Ame towa kunje rabjo de Kemba jebra jala janda Yelo jena chila kunje ze Zamcho tunge saje zamba Chime durje tabu kushene Nyanan tabra zala zanda Yanda do deba mesene ma senjen sona sase Kenye dunye inzel mantrol Kodon cheje zela chatalo Gangze kamye zo chedon ze sajen de la gong Tumbro ne ngane cheken de na cheche son Deze keba chela chanza Kambo katen lae yelme jen jelbe kato yungi lungso Lambene saldo tuba dam chumden lae shlala chasa Che kando mama geje jo shaje chondo jone roje Serje meso samso kando je seson chome gola chansa Dongje gorje chowe tsultene choden namda dungdu utase neren zane dambu Tenye chandang dala chanza lo jalbe kabdo langchen yungba de yangba chendo teo jangse Manga daro toba ngwansan je chenbe ishen barga sanza Varanasi cheche kolo go zede saldo saldo chendo Ami dudo gomba nyangen de tukni namka dhala chanza Hedra tembe dabo chumden je jibe tsola dozam tuba Ege jowa kunje chum Deshen ege tendam zumba rashu Deshen shekwa chego jenda Kordan kutse tsenan shinkam Cheche zenjo zombo jindawa Derna kona taso jirwarasho Chela dojen sowa tabe taso kanda Ulpon taso jiwa Chedon tashi pelwara zedo so Diba chiya mecha jen Gewa punzum sofara Rangi sembi yongso dam Tene sangje tenpa Chinam tamje jule jon tejo deje shibe son jule kuba gaim kejon chembo deke son karma rabe marme dan juma seba chubur milam lodan tinda dije chinam detar ta nam khadan yambe simje tamje kamjum korwa dumalje jamso le talte Namba tamje chimba zobe sanje je gopang tobra jawo nyamba ki kunmon jancho cheto semkeba hondo chine dambe chi sembara shu Tela yangang sembe chini nyamme shaje jelbo di nyeji Ani sangjebe jela, ani lo shibchu chinga ki ringla, ani saja gasaka Ani yangba chen Varanasi jalbe khab, ani nyeyo laso bagi, ani samche chung laso bagi Ani nechen chebardu pepchene ani chuchi kulo korwa dini tsangma duide kanjurum boche jejawa jade deyang tsangma dordeba inang dambe chu duzi tawo dini tsiksu cheba dambat jejawa di namola shiloka shibja nishu tsadu nama duide delayang lewu nishu tsadu ki tsuldu shiba ki sanji ki duzi tabi chu dini shiba ki kapimbe eni loma che namji semmayang bara jide tsechikdu sembara shu Omen chuji winji podando du som sanje kunji ngowo ni ransim chugu ngonson tunjiru sabe lome shabla ki chansa yende sanje kunda nyamnaya kajin sanje kunle labbi je sabe lome shabla solvande neluk julato bara jinje lo kange tuti nyerzune tawa tamji pangwe che tampe chuni tonzeba Gotamde la bicha sal
नया साल में हम लोग बहुत शुभ कार्य शुरू करने जा रहे हैं। वो शुभ कार्य क्या है? संगे चुमदिंदे हमेशा की गैल्बो, जब उन्होंने संगेस का गोफंग प्राप्त कर लिया, बुद्धता को प्राप्त कर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जब वो 35 वर्ष के थे, उस समय दुर्जे डेल जमचुक सिंह के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने संगेस का गोफंग को प्राप्त किया था, बुद्धता को प्राप्त किया था, ज्ञान को प्राप्त किया था। उसके बाद ज्ञान प्राप्त करके चुपचाप वो बैठे नहीं रहे। ज्ञान प्राप्त हुआ करके क्योंकि उनका मौलम था, उनका प्रणिधान था, उनका प्रतिज्ञा था कि संसार में दुख का जड़ क्या है और उस दुख से दूर होने के लिए कोई रास्ता है। तो वो पहले से सोचते थे ऐसा, उस दुख से दूर हटने के रास्ता को खोजते खोजते बाद में उन्होंने खोज निकाला। जब वो खोज निकाला तो खुद ही संगस हो गया, खुद ही दीपक बन गए, खुद ही ज्ञान का पुंज हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने लोक कल्याण के लिए धर्मचक्र प्रवर्तन छिची खुल्लो कौर बोलते हैं ना, छसुंशी किया। 45 वर्ष तक लगातार सिर्फ अपने जीवन में साल में 3 या 4 महीने वर्षावास में, जब बहुत ज्यादा बरसात होता है उसको यरने बोलते हैं, उसको वर्षावास बोलते हैं, वास बोलते हैं, उस समय कहीं नहीं जाते थे। एक जगह बैठ करके गेलोंग के साथ, बहुत 500 गेलोंग, 1000 भिक्षुनियों के साथ जो है यरने करते थे, वर्षावास करते थे। वर्षावास जब करते थे तो अंदर बैठ करके वो लोग शिने और लंगथोंग का नामलेन करते थे। शमथा, आनापानसति और विपस्सना का ध्यान करते थे, उसको शिने और लंगथोंग कहते हैं। उसमें वो ध्यान करके कहीं नहीं जाते थे। बाकी जितना 9 या 8 महीना जितना बचता है, लोक कल्याण के लिए पैदल जाते हुए, पैर के अंदर चप्पल तक नहीं होता था भगवान के, समझ गए ना। और वस्त्र नब्जा जो है बहुत सिंपल, इतना साधारण नब्जा होते थे। नब्जा जो उनका जो छुगे होता है, जो उनका वस्त्र होता है, ऐसा करके लोक कल्याण के लिए कभी वाराणसी पहुंच रहे हैं, कभी गया पहुंच रहे हैं, कभी राजगिरी पहुंच रहे हैं, कभी नालंदा पहुंच रहे हैं, कभी श्रावस्ती पहुंच रहे हैं, कभी कौशंबी पहुंच रहे हैं, कभी वैशाली पहुंच रहे हैं, कभी कुशीनगर पहुंच रहे हैं। ऐसा पूरा जीवन 45 वर्ष तक 45 वर्ष तक लो शिक्षुना बर्दू संजय चुमदिंदे जो है लोक कल्याण के लिए सिमचन थमजे को देवा देने के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानि कंपाय सुखाय हिताय देव मनुष्य नाम बोलते हैं। सबके सुख के लिए, सबके भलाई के लिए, देव और मनुष्य प्राणी मात्र सबके कल्याण के लिए छुच खोलो कोशिश करके सब बैठ गए। वो सबसे बड़ा नमलन संगे चुमदिंदे का। तो यहाँ वहाँ सब छुच खोलो कोशिश किया उन्होंने, इतना धर्म का प्रवचन किया, इतना छस किया। सब छस को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो 84,000 छस है, 84,000 छस है ना, 84,000। तो 84,000 छस दिया है संगे चुमदिंदे ने, 84,000। उन छस को सब इकट्ठा किया, तो बाद में इकट्ठा किया तो उसको बुद्ध वचन बोल के दो मोम्पा दुलवा बोलते हैं। दो मतलब सूत्र, जहां पर संगे चुमदिंदे ने चमचुक सेम्पा और उनके चेलों के बीच में कैसा बातचीत होता था, गौम जमनन कैसा करना चाहता था, प्रश्न और उत्तर का एक पोथियों का वो है, भंडार है, उसको दो कहते हैं, उसको सूत्र बोलते हैं, दो बोलते हैं। फिर उसके बाद विनया बोलते हैं, उसको दुलवा बोलते हैं। उसके अंदर गेलोंग मा गैसुल मालो का ठिम कैसा होना चाहिए, किस तरह का दोम्बा का पालन करना चाहिए, एक गेलोंग मा किस तरह से जो नए नए गेलोंग मा और गैसुल मा बनते हैं उसको किस तरह से उनको आगे ले जाना है, शील सुजुम का पालन करते हैं उसका। और ढावा जो गेलोंग होते हैं, गेलोंग का कितना ठिम होना चाहिए, किस अनुशासन से चलना चाहिए, इस बारे में गेलोंग और गेलोंग मा और गैसुल मा का एक ठिम का एक पोथियों का एक भंडार है, उसको दुलवा कहते हैं, विनया ऐसा चीज। फिर उसके बाद अभिधम्मा, उसको मोम्बा कहते हैं। मोम्बा के अंदर फिर ये दुनिया क्या है, असली है कि नकली है कि मितकवा है कि तकवा है कि क्या है बोल के, इसके बारे में विस्तार पूरा संगे चुमदिंदे का सुन आता है, उसको मोम्बा कहते हैं। वो सब उस बीच में इन सभी पोथियों के अंदर जो बातें कहा गया है वो 84,000 प्रकार का है। 84,000 गेटी शतम बोलता है, शुकी फुंकुल गेटी शतम। अब वो तो बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ भी कंजूर देखिए, ये सब कंजूर है, 100 पोथी है। ये सब पढ़ने का हमारे लिए फुर्सत भी नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता है। इसको लामा लोग को बुला के घर में क्रिया क्या कहते हैं वो कर्मकांड के तौर पर पढ़ा सकते हैं। जैसे वैदिक संस्कृति में गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, उस तरह से हम लोग पढ़ के रख देते हैं। लेकिन हकीकत में जो संगे चुमदिंदे का छत जो है
अरमाली से पोथी को निकाल करके पढ़ने मात्र से, वांचने मात्र से छस समझ में नहीं आता है, छस को समझना पड़ता है। मानने से ज्यादा जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग अभी तक भी हम लोग अपने आप को धर्म के पीछे जाने वाला धम्मा अनुयायी के होने के नाते छसपा है के कर भी छस असली समझ में आज तक आया नहीं है। क्योंकि कंजूर का एक एक पोथी को खोल करके कोई लामा या खेम्पो या रिम्पोचे या जो भी हो, इसका व्याख्या करना असंभव है। इतना बड़ा भंडार को कैसा है, एक पोथी भी नहीं पढ़ पाओगे फिर तो जिंदगी में। तो उसको फिर संगस के छस में फिर समय समय पर इन सारे जैसा न्यायत में, श्रावस्ती में, राजगीर में, कौशंबी में, अनेक जगह में संगे चुमदिन दे भगवान तथागत बुद्ध जी ने उनको थोड़ा संक्षेप में श्लोक में अंदर कविता की तरह श्लोक के अंदर बत करके कई जगह पर बताए थे। कई जगह पर बताया। बाद में जो गेलोंग और जमशेद सेम्बा जी लोग थे, जो लोक कल्याण के लिए जो अग्रसर थे संगे चुमदिन के आज्ञा अनुसार, उन लोगों ने उन सबको इकट्ठा करके एक वेलम में लाया। फिर उसका नाम रख दिया धम्मपद। धम्मपद होता है, धम्म होता है छस होता है, पथ होता है रास्ता है। धर्म का रास्ता कैसा होना चाहिए, कहीं हमको जाना हो तो रास्ता तो मालूम चाहिए ना। बिना रास्ता मालूम हुए हम लोग जाने लगे तो उल्टा दिशा में चले जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए लम शेख होगा तुमको, लम जो है क्या है, रास्ता जो क्या है, उन रास्ताओं को संगे चुमदिन ने जो कंजूर के निचोड़ करके जो बात बताया है और 423 श्लोकों में उसको बद कर दिया है। ये तो हमारे यहाँ तो 423 है, जो चैना में अनुवाद हुआ है उसमें 750 श्लोक है, चैना में ज्यादा ही अनुवाद हुआ है। यहाँ दूसरा गैप हो गया, जो दुष्ट लोग थे, जो धर्म को नहीं माने थे, उन लोग ने जला करके खत्म कर दिया। फिर भी आज से 423 जो है श्लोक जो है धम्मपद का, जो संगेस का सुम जो है वो आ जाता है। वो 26 अध्यायों में बंटा हुआ है, जो चैना में सुरक्षित है चाइनीस भाषा में, और 750 श्लोकों में है। उसमें 39 चैप्टर है या 29 चैप्टर कुछ ऐसा है, वहां ज्यादा ही है। तो मतलब क्या कह रहा हूं मैं, संगेस का जो छस, जो रास्ता संगेस ने जो दिखाया है, उस रास्ता को इकट्ठा करके संगेस ने जो शिक्षा दिया है, छस दिया है, कैसा करना चाहिए छस के बारे में बताया है, वो 423 श्लोकों में पद है। तो उसको इकट्ठा करके उसको धम्मपद कहा गया है। ये धम्मपद है, ये हमारे परम गुरु जी वंशु दुर्जय नेगी जंगी के खेम्पो जी, उन्होंने इसको छपा था। ये थोड़ा अच्छा करके लगा, नहीं तो इतना मोटा है, मेरे पास तीनों है, लेकिन ये इसमें अच्छा करके इसको थोड़ा संक्षेप करके अच्छा में रखा है। तो गुरुजी का मैं कृतज्ञता हूँ कि उन्होंने लोक कल्याण के लिए इस किताब को, बुद्धवाणी को समाज में लाया है ना। ये धम्मपद है, धम्मपद वरना शिक्षुचेपा, इसको शिक्षुचेपा बोलते हैं, शिक्षुचेपा बोलते हैं। वो धम्मपद का ये कोई आज तक किसी खेम्बो ने या किसी रिम्पोचे ने इसको बताया ही नहीं। मेरे को बड़ा हैरानी होती है, क्यों नहीं बताया। ये जड़ जो है संगेस का छस के जड़ को क्यों नहीं बताया जाता है, हमारी गलती है ना। हम लोग नंबर संगेस है बोल के संगेस के सुम को डायरेक्ट नहीं बता करके किसी चुलुक के बारे में, निम्मा हो तो निम्मा ही पढ़ते जाएगा, कर्जो हो तो कर्जो ही पढ़ते जाएगा, गेलुक हो तो गेलुक ही पढ़ते जाएगा, डुब्बा हो तो डुब्बा ही, वो तो संप्रदायवाद खड़ा हो गया ना, वो संप्रदायवाद खड़ा हो जाता है। फिर हम तो डुब्बा है जी, हम तो निम्मा है जी, हम तो गेलुक है जी, हम तो साक्या है जी। पहले नंबा संजेपा बोलने वाला कोई नहीं है। आप कौन है? मैं तो निम्मा हूँ जी, मैं तो डुब्बा हूँ जी, मैं तो साक्या हूँ जी। ठीक है भाई, वो भी एक ब्रांच है भगवान, लेकिन पहले तो जड़ को जानो। संगीत के छस के जड़ को नहीं जान के आप कहाँ साक्या निम्मा गेलुक के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो अच्छी है, वो संस्कृति है, वो भी परंपरा है, लेकिन इस चीज को जाने बिना छिलुक का बात आ जाता है ना, फिर उसमें जिम्बा आ जाता है, छक्पा आ जाता है, फिर ईर्ष्या आ जाता है, ठाठोक आ जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हो रहा है ना समाज में। बड़ा बुरा लगता है मेरे को, अच्छा नहीं लगता। समझते ही नहीं कोई, समझने से पहले समझाने लग पड़ते हैं दूसरों को समझाने के सब उल्टा समझाते हैं लोग, यार क्या जानते हो, हम तो ये है वो है, ये तो सब खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। संगीत का छस जो है हम लोग को क्या करने सिखाता है, हम लोग को मिलना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। संगीत के छस जो है सब कुछ मिलकर चलने का छस है, झगड़े करने का छस नहीं है, ऊपर नीचे होने का छस नहीं है। फिर तो वैदिक परंपरा से हमारा क्या फर्क रहा? फर्क यहाँ तो जातिवाद सब तोड़ करके मन के क्या कहते हैं, स्वयं का जो मोह है, मन की शुद्धता है, पवित्रता को खुद जान करके विकार को हटा करके आगे बढ़ने का धर्म है ना। ये धर्म का अर्थ ये होता है सच्चाई के रास्ते पर चलना, उसको धर्म किया जाता है। धर्म का
आडंबरता से कोई लेना देना नहीं है, पाखंडता से कोई लेना देना नहीं है, कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है, पूजा वजह से कोई लेना देना नहीं है धर्म का। ये समझो, यहां से कोई नहीं समझाता है। पूजा अच्छा है, करना चाहिए, नहीं करना नहीं बोल रहा हूं। पूजा करना एक संस्कृति है, अच्छी संस्कृति है। भगवान बुद्ध जी का मूर्ति के सामने नमस्कार करके फूल चढ़ाना, पानी चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले बुद्ध कौन है और क्या है और उसे कैसा जाना जा सकता है, उस पर तो ध्यान दो। वही पता नहीं होता है, फिर हम लोग भेड़ चाल में चले जाते हैं ना। तो ये बहुत सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आयु बढ़ते जा रहा है। मैंने कहा आप लोग को 9 वर्ष की बधाई हो बोला ना, लेकिन मैंने कहा कि सन 1919 जब शुरू हो रहा था, 1900 क्या कहते हैं 2019 जब शुरू हो रहा था, उससे लेकर आज 2020 आज शुरू हुआ ना, इस एक साल में आपने लड़ाई झगड़ा किया कि चुगली लगाया कि गाली गलौज किया गया कि फालतू में यहाँ वहां दौड़ते वोड़ते समय बिताया कि सही में 1-2 मिनट बैठ करके अपने मन को देख करके शुद्ध किया कि कुछ अच्छा कार्य किया कि क्या किया, जांचो ना अपने आप में, कुछ नहीं किया होता है। अगले साल करते हैं, अरे क्या करोगे, करने का नियत ही नहीं है ना, आदत ही नहीं है, करोगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा है, मर जाओगे एक दिन। मरना तो छस है, मरना क्या है, छस है। क्यों? मरना सत्य है, सच है। जीना सच नहीं है, मरना सच है, ये जानना चाहिए ना। संघर्ष ये सिखाता है, संघर्ष जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं और मरने की कला भी सिखाते हैं। जन्म लिया तो मरना है ना, ये सच है, ये छस है। कमा लिया तो खोना है ना, ये सच है, ये छस है, वो जानना चाहिए हमको। घर बनाए तो गिरेगा ना, सच है ना, वो छस है, जानना चाहिए। घर बनाया, आग जल गया, रो रहा है, पिट रहा है, फालतू में हार्ट अटैक क्यों करना, घर तो दोबारा बना सकता है। ये कौन सोचेगा, सोचता नहीं ना, क्योंकि मन से बढ़ करके घर बड़ा हो गया, घर से बढ़ करके धन दौलत बड़ा हो गया है ना। तो ऐसा धन दौलत से बढ़ करके फिर एक आशा हो ना, अंदर की आशा तृष्णा वो बड़ा हो गया, शरीर का भट्ठा गोल हो गया, मन का भट्ठा गोल हो गया, मन जो है दूषित हो गया, मेला हो गया, उसमें सब कपट है, गलत विचार है, ईर्ष्या है, लड़ने का विचार है, होड़ का विचार है, जैसा कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा जैसा, हमेशा जिंदा रहूंगा जैसा, ऐसा नहीं आता है मन में। गलत विचार है, संघर्ष ने कहा गलत विचार है। संघर्ष का सोच को जानना चाहिए ना। लड़ाई झगड़ा करने से पहले हम लोग छस पाए बोलते हैं, हम लोग संघ चुमदिन देश के अनुयायी हैं, तो संघर्ष के छस को जानना चाहिए। सब कुछ खत्म होने वाला है, छस है, एक दिन बिछड़ जाना है, छस है। समझ गया, समझ गया ना। बुढ़ापा होना छस है, बदलना छस है। हम तो सोचते हैं कभी भी नहीं बदलूंगा, गलत हो गया, उसको कहते हैं मरिकबा। नहीं जान रहा है, गलत में रास्ते में जा रहा है, एक दिन गुजर के जाना है। 58 साल, मैं 58 साल का हूं, पता ही नहीं लगा कैसे चला गया, 58 हो गया जी। कल परसों तो बड़ा जवान था, वाराणसी में घूम रहा था, यहाँ इतना जल्दी कैसा गया जैसा लगता है। तो मैं हमेशा अपने शिष्यों को कह रहा हूं, अगर पहले मैं कहता था 60 साल तक जीना हो तो 58 साल का हूं, 2 साल बाकी बचा, 2 साल में तो मैं नहीं होऊंगा ना। तो छुस करना तो अभी करना ना, कल क्यों, कल क्यों सोच रहे हो, कल आए ना आए किसको पता है। समझ गया, ये ऐसा सोचना चाहिए ना, तब जाके हम लोग छुस पर किसी को थोपने की जरूरत नहीं है। हम लोग बुद्धिस्ट होते हुए भी इन अमृत चीजों को हम लोग ग्रहण नहीं करते कभी। ये अमृत है, अमृतवाणी इसको कहते हैं, दुचितावक्षी इसको बोलते हैं। तो ये संज्ञा चुमदिन जी ने जो इसमें क्या बात कहा है, मैं इसको शुरू करने जा रहा हूं। संज्ञा चुमदिन का छस को आप समझ लो। सबसे बड़ा क्या चीज होता है, भगवान क्या होता है। भगवान मूर्ति थोड़ी भगवान ना होता है, देवी देवता थोड़ी ना भगवान होता है। भगवान तो अंदर में है, अंदर में चित्त के अंदर भगवान बसता है। मन मंदिर बोल के बोलते हैं ना लोग, मुतेकपा लोग बोलते हैं, लेकिन मन मंदिर बोलने वाला भगवान संज्ञा चुमदिन जी ने बताया, मन ही मंदिर है। मन मंदिर है, उसके अंदर बुद्ध का वास होता है। संजय जंतु मासोल चिक रंगी संगी संजय हिंस, एक तोलंग के अंदर धाका हिस्से बोल के कचा है कुछ लोग में। संजय जंतु मासोल चिक रंगी संगी संजय ही बोले बुद्ध मधुआ तवंग से धाका हिस्से जगर की तो आ रहा है भोगितु जगर की तो आ रहा है आता सूत्र ज्ञाना नामा भोगितु धाका हिस्से जे जवा थे पश्चिम दो होगी। संघर्ष का सुन ऐसा नहीं आता है,
संजय जंतु मसोलचिक रंगी सरने संगे हिंस। संजय को बाहर मत ढूंढो, अपने मन के अंदर ही संगे से। जब मन पूरा पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सहज हो जाता है, वहीं संगे से। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा मन जो है विकारों से ग्रसित हो गया है, नमतों में आ गया है। हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना है, जलने की भावना है, क्रोध होने की भावना है, आसक्ति की भावना है। चाहिए चाहिए चाहिए, आसक्ति, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, द्वेष। ये दोनों शत्रु है मन का, ये दोनों शत्रु है। चाहिए का मतलब छकपात जिम्बा, नहीं चाहिए का मतलब गुस्सा द्वेष। ये दो चीजें हमारे मन को मेला बना देता है। छोस का बात करेंगे तो अब सबसे बड़ा चीज क्या है? मन है। मन को सुधारना बहुत जरूरी है। उन भगवान बुद्ध के अमृतवाणी दूषित विच्छय जो है दंपत में 423 सुंग है ना संगीत का, उसको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। मेरा मानना है कि इस साल थोड़ी खत्म हो गया है। मैंने ये प्रतिज्ञा किया, मैंने ये दमचा किया है, जब मैं 60 साल को होने को आऊंगा ना तब खत्म होगा ये। अभी मैं 58 का हूँ, अगले साल चलेगा, उसके अगले साल जब 60 साल का होगा ना, 60 साल जब मैं पहुंचूंगा तो दंपत को कंप्लीट करूं सोचा है। जो लोग यहाँ आएंगे वो लोग सुनते जाएंगे। अब किसी कारणवश संसार का कार्य आपका बड़ा हो गया तो मैं नहीं जान सकता, इसको आप सुनोगे तो आपके कल्याण के लिए, आपके भलाई के लिए। समझ गए ना? मैं कोई यहाँ विद्वता दिखाने और पंडिताई दिखाने के लिए थोड़ी बैठा। पढ़ लिख करके ये करके लोग कल्याण की भावना है। जब हम लोग लमा बने तो सिमचन थमचे का कल्याण करूंगा, सबका भलाई करूंगा, उनके लमा बन के दवा बन के बैठा है ना। तो इस उद्देश्य से मैं इस संदेश का छठ का मैं आपको प्रवचन करने जा रहा हूँ। ये आप लोग किताब, आप लोग कई लोगों के पास होगा ये किताब, लेकिन पढ़ते नहीं होंगे ना। तो ये इसको यमक वक बोलते हैं, जुंगी लहू बोलते हैं। इसमें दो बात बताते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनके संगे से ऐसा बताते हैं। सबसे पहले सम से शुरू करते हैं, मन से। अब मैं इसको छोस में पढ़ूंगा क्योंकि हम लोग हिमालयन के लोग हैं ना, इसमें छोस में अनुवाद करता है। इस ग्रंथ का संसार की सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, अंग्रेजी में, फ्रांस में, फ्रेंच में, टिबेटन में, कोरियाई भाषा में, जापान भाषा में, पूरा दुनिया भर के भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। दुनिया के सभी अच्छे लोग जो हैं संगीत के इस सूंग से प्रेरणा लेते हैं। अमेरिका भी लेता है, जर्मन भी लेता है, जापान भी लेता है, कोरिया भी लेता है। से संगे से सुमन दीजे उजी सुमन ये पे साचिम बोय न दी सुंग दी तेनी सेम संगो चिनी संग नेरो जिया आगो सोन चुनम हिचे रंगशिन ते हिन्नी चोशिंग होला दो गालते दुबी सेम चेनी मेसम याना जेजंग रुंग देला देई दुनल थप शिंदा जेसु जंगवा शिन बोलते हैं। इसको पाली में क्या है? मनो पुप्प मंगा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन बासुति वा करोति वा ततोनम दुखं अनवेति चक्कं वा हतो पदम। ये संगीत का सुन था। संगीत इस भाषा में छे देते थे, पाली हाँ, इस भाषा में छसते थे। बाद में छस में जब बदल जाए तो छिनम हिचे रंगशिनते हिन्नी सोशिंग वंदु दो गांगशिक सेम हिन्नी गांगशिक दुप्पी हिचिनी मेसम यानी जेचंगरुंग देला देई दुंगल थप शिंदा जेसु जंगवा शिन बोलते हैं। इसका मैं अर्थ बताऊंगा। जितना भी संसार में वस्तुएं देखता है, अच्छा है, खराब है, बढ़िया है, मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये मुझे बड़े बुरे लगते हैं, जितना भी हम लोग सोच विचार करते हैं, ये है, वो है, जो भी सोच बताऊं सब पूरा मनोमय बोलते हैं, अपने मन के द्वारा निर्मित किया हुआ बोलता है। हकीकत कोई दूसरा ही होता है बोलते, समझ गए ना? सब हम अपने मन के सोच के आने। एक आदमी है यहाँ बैठा हुआ, उसको देखेंगे ये आदमी तो बहुत अच्छा है, नहीं यार ये तो खराब, दूसरा फिर खराब बताएगा, एक अच्छा है बताएगा। उसका मन उसको अच्छा समझने में उसको दिक्कत होता है, एक आदमी कह रहा है अच्छा, हकीकत कुछ और ही होता है। तो इसलिए दुनिया में जितने भी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग व्याख्या करते हैं, जिसे हम लोग बताते हैं हमारे संसार के दृष्टि में, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, राज्य में हो, जो भी हम सब बताते हैं सब मन का खेल है बोलते हैं। सब मनोमय है, सब मन का ही खेल है बोलते हैं। मन पहले मन सोचता है, पहले मन में सोचना पड़ता है, फिर मुंह काम करता है, फिर शरीर काम करता है। सबसे पहले सम है, पहले सम में सोचना पड़ता है, फिर मुंह खोल करके कुछ गाली देना तो गाली, मीठा बोलना तो मीठा, फिर अपने शरीर पर आता है।
ध्यान के ऊपर आता है, अपने अपने लुई के ऊपर आता है, समझ गए ना। सबसे पहले सेम में बोलता है चुनम हिची रंगजिनते हिन्नी चोशिंग मुंडुटो बोलता है। सबसे पहले जो भी संसार का काम करे ना, मुंडो जो क्या है बोलता है, सेम में बोलता है। वो सेम सबसे पहले सोचता है, सोच के बाद फिर शरीर का काम करते हैं, फिर वाणी का काम करते हैं बोलता है। गालते दुखते हिची मेचेंगे। अगर मन के अंदर कपट है, कपट है, मन के अंदर बुरी भावना है, बुरा वचन है, बुरी भावना है, बुरा विचार है, उस बुरी विचार के साथ जब हम कुछ बकते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं मन से और शरीर से फिर हम जब क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, तो वो तो गलत काम किया ना बोलता है, वही तो पाप है। गलत काम किया ना, किसी को गाली दे दिया, शरीर से किसी के ऊपर पत्थर मार दिया, तो गलत काम दिया। तो कहते हैं कि देला दे दुंगाल था बोलता है कि उसने गलत काम किया, तो इससे उसको दुख मिलेगा बोलता है। देला दे दूंगा तो कैसा दुख मिलेगा? जैसा शिंगता जैसे डंगवा जिन बोलता है, जैसा रथ होता है ना, रथ पता है, आगे घोड़ा होता है, पीछे गाड़ी होता है, घोड़े में बांधा होता है रथ। जहां पर ही घोड़ा दौड़ेगा और रथ का पहिया उसके पीछे ही दौड़ेगा। रंग हम भी माली तो रथ जुम सुसुता था तो हम भी माली तो रथ छूटेगा नहीं, वो उसके पीछे चलते आएगा। ठीक मन में गलत सोच करके, उल्टा विचार रख करके, हैं, मुंह से गाली गलौज करके, शरीर से किसी को मार काट करके अगर इस तरह से कार्य करेगा तो उसका दुख तो भोगना ही पड़ेगा। कैसा दुख भोगना पड़ेगा? क्योंकि आपने गलत सोचा, गलत कार्य किया, तो उससे तो दुख ही मिलता है। कैसे? वो दुख आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। जैसे रथ जो है घोड़े के पीछे जहां भी जाए उसके पीछे दौड़ता है, उसके पहिया जो है, ये काम होता है। इसमें क्या है बताइए, कितना सच्ची बात है, कितना अमृत है इसमें, सोचो आप लोग। क्योंकि हम लोग ये नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हमारा आदत जो है कर्मकांड में लगा होता है, पूजा वजा में ज्यादा लगा होता है, असली मन का सोच में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, ये निसर्गिक कानून है। ये जो बता रहे ना संगीत, ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। जब पाप का कार्य करेगा तो दुख भोगना ही पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि अभी किसी को आपने यातना दिया, तड़पाया और एकदम उसके बाद आपको कुछ उल्टा सीधा काम करके तुरंत पैसा भी मिलेगा ना, दूसरे को धोखा दे करके पैसा मिलेगा, हैं? बकरी को सामने काट करके उसका खून पियोगे तो जुमा भर करके स्वाद तो आएगा ना। बाद में तुम्हारा जुमा निकाल के तुम्हें काटेगा तो क्या लगेगा बताओ? यह सोचना चाहिए, समझ गया ना। वो आने ही आना है, क्योंकि गलत कार्य किया तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। चीटावाई ले जेपा डेबो देंदा निदु थप बोलते हैं संगे चंदेंदे। जिस तरह से कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। यहां सबसे बड़ा सोचने का काम क्या है पता है? सबसे पहले क्या सोचने का? सेम कहते हैं कि सब सेम में बोलता है। सेम जंबो होगा तो फल जंबो होगा। सेम अच्छा, मन अच्छा होगा, चित्त अच्छा होगा तो उसका फल अच्छा मिलेगा, हैं? अगर सेम में विचार गलत होगा तो मुंह से गलत करोगे, गलत बोलोगे, शरीर से गलत करोगे, उसका फल तो दुख ही भोगना पड़ेगा। जैसे रथ जो है घोड़े के पीछे दौड़ता है, उसका पहिया जब तक ये ना छोड़े ना, तब तक, जब तक आप पाप कर्म ना छोड़े ना, तब तक आपको सुख मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर एक बार एक घटना घटा है। हर एक घटना के पीछे एक कहानी होता है। ये इसका महत्व यह होता है। कहते हैं कि एक बार संगे चंदेंदे न्यायत में बैठे थे, श्रावस्ती में। श्रावस्ती वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध जी ने 25 बार यज्ञ किया था। 25 बार यज्ञ का मतलब होता है, मतलब 75 महीना न्याय युग से संगीत में वहां पर यज्ञ किए थे। वहां पर यह छोस बताए थे। ये जो छिक जो है ना, कहां सुंशी किया? न्यायत में सुंशी किया। न्याय के ढोंगझर चंबो अनाथ पिंडक के जेतावन आराम में वहां बोले थे। पूरा भिक्षुओं को, बहुत सारे भिक्षु भी थे वहां पर, ऑर्डनरी लोग भी थे, ग्रेस लोग भी थे, उनको ये बता रहे थे। किसी ने प्रश्न पूछा तो बुद्ध जी ने ये बताया। वहां पर एक डाचंपा गेलोंग थे, बोल रहे हैं। गेलोंग का नाम था चक्षुपाल नाम के गेलोंग थे। चक्षुपाल गेलोंग थे, डावा बन गए, भिक्षु बन गए। भिक्षु बनने के बाद उन्होंने ध्यान किया, आनापानासति का अभ्यास किया, विपश्यना किया, अरहत हो गए चक्षुपाल जी। मिक्योंग बोलते हैं उनको। अरहत हो गया। अरहत होने के बावजूद वो अंधे थे, वो अंधे थे, उनके आंख नहीं था, अंधा था, जन्म से अंधा था ना। फिर भी डावा बन के, गेलोंग बन करके डाचंपा हो गए। डाचंपा का मतलब डोलचे हो गया, अरहत हो गए, डाचंपा हो गए। लेकिन आंख से दिखाई नहीं देने के कारण जब वो चलते थे ना, रास्ते में चलते थे, तो उनके पैर के नीचे कीड़े मकोड़े आके मर जाता था।
खुद अंधा दिखाई नहीं देता तो फिर मर गए ना। फिर दूसरा गिरोह लोग परेशान हो जाते थे, दूसरा भिक्षु लोग परेशान हो जाते थे कि ये तो अरहत है, ढाचंपा है, इनसे तो पाप हो रहा है, हमेशा हमेशा जाते हैं आते हैं तो उनके पैर के नीचे कीड़े मकोड़े आके मर रहा है, ये ऐसा कैसा हो सकता है? एक तो ढाचंपा, दूसरा अंधा है, और तीसरा ये पैर के नीचे सब कीड़े मकोड़े दबा रहे हैं। फिर एक गेलों के मन में आया, एक भिक्षु के मन में आया कि संगे चमदेंदे से प्रश्न पूछते हैं। संगे चमदेंदे जी बैठे हुए थे, तथागत बुद्ध भगवान बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, तो वहां जाके प्रणाम करते हैं भगवान जी को, पूछते हैं कि आपसे एक प्रश्न है कि ये जो ढाचंपा चक्षुपाल जी हैं, ये है तो अरहत हैं, अरहत होते हुए ये कैसे अंधे हो गए? ढाचंपा होते हुए, इतना महान संत होते हुए, ढाचंपा होते हुए कैसे अंधे हो गए? और दूसरे जब ये चलते हैं तो पैर के नीचे आकर के बहुत कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, इसका पाप लगता कि नहीं लगता है? ऐसा पूछा संगे से। फिर संगे से उस समय बताते हैं, पहले मैं अंधे होने का बात बताता हूं। अंधा ये इसलिए हुआ कि पूर्व जन्म में आज गलत कार्य किया होगा तो उसका फल तो न्यामलेम्बा डुप्थो न्यामलेम्बा होगा भी, ढाचंबा होगा भी, अरहत होगा भी, उस समय भी भोगना पड़ता है। तो इसने क्या काम किया, ये जो व्यक्ति अभी ढाचंपा बना हुआ है, जो चक्षुपाल जो है, वो पूर्व काल में किसी जमाने में आंख का वैद्य था, आंख का डॉक्टर, आंख का वैद्य था। तो उस समय एक औरत थी, समझिए ना, एक औरत थी, वो औरत जो है अंधी थी, उसके क्या कहते हैं आंख में जो कैटरेक्ट का रोग था और धुंधलापन था, मतलब दिखता नहीं था, ठीक ढंग से दिखता नहीं था। फिर किसी को पता लगा कि ये वेद बहुत तेज है, तो वो औरत वहां आई, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि चक्षुपाल का पूर्व जन्म में मैं तुम्हारे आंख को ठीक कर सकता हूँ। फिर औरत बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। तो औरत कहती है कि सही में आप मेरा आंख ठीक करोगे तो मैं आपका बनकर रहूंगा, मतलब आपके साथ आपका दासी बन के रहूंगी। तो ऐसा उसने वचन किया। फिर उसने वेद ने जो उसका ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, तो सही में ठीक हो गया, दोनों आंखों से हो गया। लेकिन उस समय जो औरत जो थी ना, वो अपना वचन भूल गई। आंख ठीक हो गया, क्या जाना है इसके साथ, नहीं जाना बोल के बहाना करते टालते रहा, नहीं गया। फिर दोबारा उसके आंख में बीमारी आ गई। फिर उस समय कहाँ जाना, आप वो तो टाल दिया। फिर दोबारा जाता है, उस समय तो मैं ऐसे किया था, अभी सही में आपके साथ बैठूंगी, आपके साथ वो करूंगी आप। पर उसने भी सोचा था ये दोबारा मेरे पास आएगा तो इसका आंख को मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ऐसा सोच के बैठा था वो व्यक्ति जो आंख का है। समझ गया ना क्या कर रहा है? यार मन में सोचता है, मन में सोचता है, फिर वो कर्म करने जा रहा है। उस श्लोक का अर्थ देखो कैसा बताते हैं संगे चमदेंदे। तो फिर ऐसा सोचा, फिर आ गई उसने, क्या किया उसने, ठीक है मैं ठीक कर दूंगा। ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर डोज दे दिया, मतलब बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकत वाला दवाई दे दिया, ज्यादा ही दवाई दे दिया। तो उससे आंख जो है अंधी हो गई। अंधी हो गई तो जन्म से अंधी आ गया। वो उसको बड़ा अच्छा लगा, वो उसको मजाक चढ़ा दिया, मैंने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, बुरा विचार, फिर और भी ज्यादा बुरा विचार को उसने सोचा उस वैद्य ने। वही वैद्य अभी ये चक्षुपाल अरहत है। समझ गया ना आपको? सुन, ऐसा है धम्पद में वो चक्षुपाल जी जो है पहले जन्म में आंख का भेद करके ऐसा कर्म कर दिया। तो पहले सोचा, फिर किया, फिर इसीलिए अभी तक भी उसका फल जो है, दुख जो है, जैसे घोड़े के पीछे रथ का पहिया दौड़ता है, उनको छोड़ा नहीं। खुद तो ढाचंपा हो गया है, लेकिन वो फल जो है ढाचंपा होते हुए भी भोगना पड़ रहा है। अब दूसरी बात है, पैर के नीचे कीड़े मकोड़े आकर के दब जाता है, उसका पाप होता कि नहीं है? समझिए। तो बुद्ध जी कहते हैं उसका पाप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जानबूझ करके कीड़े मकोड़ों को नहीं दबा रहा है। आंख से दिखता नहीं तो कीड़े है या नहीं है, उनके मन में कल्पना ही नहीं है, तो उससे पाप नहीं लगता है। यह पहले इसका अर्थ है। चुनम हिच रंगचिंते ही निचोशिंगोंदुटो गलते सब ने रब दुबे मैं यानी जेचा रू देला दे धुमल थप शिंगा जैसे ढंगवाशी नहीं। ओके, यह पहला श्लोक है। तो इससे आपको क्या क्या शिक्षा मिला? बुद्ध अवृणवाणी में मन है, तो इसीलिए तो है, तो पीछे आएगा, पहले बार जोड़ के जाना पड़ता है। फिर इसीलिए संगे चमदेंदे कहते हैं कि छे बोलने वाला, धर्म बोलने वाला। धर्म शब्द तो संस्कृत का है ना, पाली में इसको धम्म कहते हैं। धम्म क्या होता है? कुदरत का कानून होता है, विश्व का विधान होता है, यह नैसर्गिक नियम होता है। तो धम्म का मतलब क्या है? मन को पवित्र करना।
क्या है? मन को पवित्र करना। जब तक मन पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, मैंने कितनी बार बोला इतने सालों में छोपेमा में, माने का तब फल मिलता है जब आपका मन पवित्र हो, नहीं तो माने एक गीत बन जाता है। बोला कि नहीं है? मैं ऐसे थोड़ी आंख बंद के बोलूंगा। मैंने छोस को मैंने ध्यान से पढ़ा ना, इसके ऊपर ध्यान से पढ़ा, खुद मैं भावना करता हूं, खुद ध्यान लगाता हूं, तो उससे खुद ही अपने आप को शिक्षा मिलता है। जब तक मन पवित्र नहीं हो तो क्या नहीं होता है, छक छक नहीं होता है, भगवान बुद्ध के प्रति अर्पित किया हुआ जल जो है पूजा में नहीं चला जाता है। मन को सुधारना सीखना, मन को सुधारे बिना कुछ भी नहीं है संघर्ष का छस में, तो मन सबसे आगे है। ये यहां पर कोई आडंबरता नहीं है, दिखावा नहीं है, कोई पाखंडता नहीं है, ये सच्ची बात है। ये अंग्रेज भी मानेगा, ज्ञानी भी मानेगा और भारतीय सब लोग मानेंगे, इसमें कोई खुराफात वाला बात है ही नहीं है, ये सीधा सीधा शुद्ध बात है। इसलिए बुद्ध अमृतवाणी का महत्व है। समझ गया ना क्या बोला? इसीलिए क्या बोलते हैं संगीत चुनते, जब भी है चाहे सचा हो, गेलू को कदू हो, निम्मा हो, सब क्या पढ़ते हैं? दीपा चियांग मिजाजिंग गेवा फुंजुम सोपरच्चे रंगी सन्नी रंगी लुई ने योंसु दुल बोलता है, रंगी नानी योंसु दुल बोलते हैं नहीं, रंगी सेम नहीं योंसु दुल, सेम है सेम। सेम को शुद्ध करने के लिए ये जो कार्यक्रम चलाया आज तक, रिवार्सल में इतने सालों से कार्यक्रम चलाया है, संगीत का छस का 3 भाग होता है। ये सुनो, आज थोड़ा शुरू कर रहे हैं ना तो आराम से आपको बताना पड़ेगा। संगीत का छस का 3 भाग होता है। 3 भाग में क्या होता है? एक भाग को कहते हैं परियत्ति, पाली भाषा में कहते हैं इसको परियत्ति। दूसरी भाग को कहते हैं पटिपत्ति, तीसरे भाग को कहते हैं पटिवेदन। समझ गए ना? ये परियत्ति हो रहा है। परियत्ति क्या है? इससे हमारे अंदर क्या पैदा होगा? थेपे शरब बोलते हैं, थेपे शरब। कौन बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हो। सुनने को थेपा बोलते हैं छस में। इससे श्रुत ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान। ये श्रुति है, श्रुति तो होना चाहिए। श्रुति नहीं है तो आपको छस क्या है आपको पता नहीं लगेगा। पहले सुनना पड़ता है ना। लमा का दंगा, ये संज्ञा का दंगा है, मेरा दंगा नहीं है। समझ गया ना? मैं कोई रिमोचे नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन सौभाग्य से ऐसा अध्ययन करने का मुझे मौका मिला जिंदगी में, तो मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए हमने अपना जीवन समर्पित करके इन्हीं चीजों को साधना भी किया, सीखा भी और पढ़ा भी। तो मेरा परम कर्तव्य बनता है कि उस बुद्ध जगत गुरु, जगत कल्याण, कृपा निदान, ज्ञान के सागर तथागत संगे चुंदन देश जी ने जो लोक कल्याण करने के लिए जो अमृतवाणी जो बताए थे, वो किताब के अंदर सीमित बन करके ना रहे, उसको बोलना पड़ता है ना। बोल रहा हूं तो हम लोग जो है ना, इसको परियत्ति बोलते हैं। परियत्ति क्या बोलते हैं? इसको, इससे श्रुति ज्ञान आ जाता है। आप लोग सुन रहे हो ना, कुछ ना कुछ कम ज्यादा आपको फर्क हो रहा है ना, कुछ तो पल्ले पड़ रहा है ना। इसमें पल्ले पड़ने में भी बड़ा पूर्व जन्म का कुछ पुण्य होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति के अंदर पल्ले नहीं पड़ता है, समझ गया ना? हर कोई व्यक्ति के अंदर ये नहीं आता है, उसके लिए पूर्व जन्म का संस्कार होना चाहिए। 6 मोमा की बाक्षा में ना 6 यंग या जे मिथुक 6 मोमा की बाक्षा को पूर्व जन्म का संस्कार होना चाहिए। आप लोग में भी कईयों को अच्छा समझ आ रहा होगा, कईयों को थोड़ा समझ, कईयों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो सकता है। मैं जानता हूं ना, मेरा अनुभव है, इतना साल में टीचर बन के नीचे चेहरा करके सबको सिखाता हूं ना, मुझे पता है ना। एक बार भगवान बुद्ध जी 4 लोगों को प्रवचन कर रहे थे। 4 लोगों को प्रवचन कर रहे थे, तो 4 लोगों में से एक क्या कर रहा है, बेटे देखते समय तो लगता है कि संगे चुंदन देकर अच्छे सुन रहे जैसा लगता है, लेकिन वो धरती पर कुछ ऐसा लिख रहा है, ऐसा लिख के बैठा हुआ है, ऐसा लिख के बैठा हुआ। एक जो है आकाश में देख के बैठा हुआ, एक वाला ध्यान मगन होकर के सुन रहा है, एक दूसरा भी है वो कुछ कर रहा था, है ना। ऐसा 4। फिर संगस ने अपने ज्ञान से देखा तो जो ऐसा जो लिख रहा था ना धरती पर, तो ओम सवस चला सवस मर करके ना शाम आ गया, वो धरती पर रेंगता है ना, वो रेंग रहा जैसा संगस की छुस की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। वो शाम वाला बच्चा है, शाम वाला वो संगीत का बात सुन ही नहीं रहा है। दूसरा आकाश में वो चिड़िया था, पहले वो उड़ रहा हूं जैसा, चिड़िया हूं जैसा, संगीत छना को भी नहीं बदिया पक्ष। तो एक जो ध्यान लगा के बैठा हुआ था, वो पूरा उसको होश आवास सुनते सुनते उसमें विपक्षना का आवास हो जाता है। ऐसा भी होते हैं, देखिए संस्कार ऐसा होता है।
संगेश के काल में भी संगेश ने भी ये भोगा हुआ है। संगेश का मतलब ये नहीं है कि संगेश का पूजा करो तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब बेकार की चीजें हैं। फर्क होता है, संगेश को पूजा करेंगे, ये करेंगे तो फर्क होता है। मैं दंपत का बात बोल रहा हूँ, दंपत का बात बोलते समय कड़वा बोलना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पूजा करते समय फर्क होता है, लेकिन तत्कालिक कुछ कुछ क्षण के लिए फर्क जरूर होता है। आपने कभी मंदिर में गया होंगे, दर्शन किया होगा, गुरुजी, बहुत बड़े गुरुजी का दर्शन किया होगा, वो झिलक जैसा आया होगा, वो झिलक सही में काम रहा हो तो वो झिलक खत्म ही नहीं होना चाहिए ना। बाद में बाहर आने के बाद 5 मिनट के बाद वही आदत, वही चाल चलन, उल्टा बदतर, फिर उल्टा ही, वो नहीं कर रहा ना काम। थोड़ा तो काम कर रहा है दर्शन करके, लेकिन असली काम करने के लिए खुद को अंदर देखना पड़ता है। रंगी सेमनी योंग सोतुल सुकी दुल सोसो की दुल, रंगी सेम शेम्बा की मदुल सोसो की दुल। अपने मन को खुद सुधारना पड़ता है। कभी कभी ना सुबह उठ करके कैप्टो लगाने से पहले पैर चौकड़ी मार के बैठ जाओ, पालथी मार के बैठ जाओ, शरीर सीधा रखो, सीधा करके पूरा अपना ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन जो है सबको शांत करो। शांत करके नाक के सिरे पर देखो, सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा देखो। बस देखते रहो, अच्छा बुरा सांस, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दो। थोड़ा बैठो ना 5-10 मिनट, ऐसा करके देखो। इतने में आप इतना महसूस करेंगे कि कितना मैं सरल हूँ, कितना मैं सहज हूँ, कितना मैं नरम हूँ, पता लगता है। फिर थोड़ा उठ करके थोड़ा कुछ बोलना बिगड़े हो, कुछ चढ़ाना बिगड़े हो बुद्ध की मूर्ति के पास, कृतज्ञता के लिए, उल्टा कुछ शक्ति के लिए नहीं है। संगे चुम्बन देश के सामने छत छोमे लगाना और सनातन वैदिक परंपरा में माताजी के शरण में जाके छत छोमे लगाने में विचार में बहुत फर्क है। हमारे संगे चुम्बन देश के विचार में क्या है पता है? ऐसा नहीं है कि आप लगन में जाए और हड़बड़ाते छम्मे जला दिया, छम्मे गिरा दिया, ढंग से छाई नहीं किया, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो फालतू में? फॉर्मेलिटी थोड़ी करना है हमें तो मन को सुधार करके पूरा सहज भाव से वो चीज करना होता है। लेकिन सीखा ही नहीं, सिखाने वाला कोई था भी नहीं और सीखा भी नहीं। आप सच्चे हो, लेकिन आप यहाँ से सीखो। संगे चुम्बन देखो, जब वो करते हैं तो क्या करना है? मैं ध्यान भावना वो करता हूँ, उस ध्यान भावना में मेरा मन जो है अधिक ना भटके, इस तरह से आप मुझके अंदर झिलक दीजिए। लेकिन ध्यान मुझे लगाना है, आप नहीं लगाना है, मुझे पता है। जब मैं ध्यान लगाता हूं तो उस समय मेरे अंदर जो है क्या कहते हैं, जो मन भटकता है ना, सिम जो है यहाँ आ जाता, वो नहीं आए। बस इतना आप थोड़ा आशीर्वाद दें। करना खुद को है, करना खुद को है। संगेश खुद नहीं करते हैं, संगेश रास्ता दिखाते हैं। रास्ता पर चलने वाला हम है। किसी व्यक्ति ने कहा कि जाहू कहाँ है जी? जाहू यहाँ से 25 किलोमीटर है जी। तो बताने वाले ने बता दिया, यहाँ से आगे चढ़ी आ जाएगा, चढ़ी से आगे कलखर आ जाएगा, कलखर से आगे फलाना 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 जाएगा। 25 किलोमीटर के बाद एक खड्डा आएगा, वहां एक पुल है, वही जाऊ है। बोलने वाले ने बता दिया, उसको जाऊ निश्चित रूप से जाना है। बोलने वाले ने तो बता दिया ना, अच्छे मन से, शुद्ध मन से बता दिया कि नहीं बता दिया? रास्ता ऐसा ऐसा है बता दिया। लेकिन जो जिसको जाना है वो जा ही नहीं रहा है। जाऊ पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। संगे चुम्बन दे यही काम किया, उन्होंने हमको रास्ता दिखाया है। संगे चुम्बन ने रास्ता दिखाया है। कैसा दिखाया है? इसके अंदर ही आएगा बाद में, क्योंकि आगे पीछे करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। संगे चुम्बन दे कहते हैं, तेजिन शेपे सुंग समते, सुनो इसको, इसी के अंदर है, दुची है। संगे चुम्बन दे का दुची का छुई है। तेजिन शेपे सुंग समते खेचक लेला बेपरज गोम्बे नंबरा जुब्बे ना दुच्ची छिंगवा नमले ठोल। समझ गया ना? तेजिन शेपे सुंग समते, संगे चुम्बन दे का क्या है? उनका खुद तो संगेश बन चुका है ना, खुद संगेश बन जाते। संगे चुम्बन दे का काम क्या है? सुंगशी करना है, बताना है। क्या बताना है? जो खुद ने ज्ञान प्राप्त किया है, कैसे ज्ञान प्राप्त किया उसको बताना है, उस रास्ते को बताना है, कैसे कैसे चलना पड़ता है। संगे चुम्बन दे बताने का काम है। लम तोमखेन है संगे चुम्बन दे। क्या है? लम तोमखेन, रास्ता दिखाने वाला। लम तोमखेन है ना, किसका लम तोमखेन है? थरपतन थंची छिंबा का, संगेश के गोफंग का, अरहत के स्थान पर पहुंचने का रास्ता दिखाने वाला। इसलिए तो हम लोग उनको तोंबा कहते हैं। तोंबा क्या? तोंबा छी की लम तोंबा, पता ना? हम लोग तो रटा होता है मुंह में, तोंबा संगे चुम्बन दे। क्या बोल रहे हैं? तोंबा क्या मतलब? में से
लेकिन जब जो बोल रहे हैं ना, तोनपा का मतलब रास्ता दिखाने वाला। आप रास्ता दिखाने वाले हैं, आप हमारे गुरु हैं, आपने जो रास्ता बताया है हम उस पर चलेंगे, ऐसा बोल रहा होता है मुंह में। चलता बोलता कोई नहीं है। चलना चाहिए ना, चलना चाहिए ना। कौन चलता है? चलते हैं। चलता है तो जैसु ही रंग है, चलते होंगे कोई, लेकिन ज्यादा लोग नहीं चलते। तोनपा बोलते हैं ना, रास्ता दिखाने वाले। आपको सुना, रास्ता दिखाने वाले हैं। संगे चुमने में क्या है? रास्ता दिखाने वाले हैं। आपके अंदर शक्ति डालने वाले नहीं है। वैदिक परंपरा में दूसरा है ना, माता जी शक्ति दे दे, तेरा मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो हमारे अंदर नहीं है ऐसा। हकीकत में ऐसा है। रास्ता दिखाने वाले कहते हैं कि संगे चुमनिंदे रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलोगे, गोमपे जम्पर जुब्बे ना, मेडिटेशन करोगे, गोम जमन करेंगे तो सो हमारे स्वयं के अंदर जो दूध है ना, दूध क्या है? दूध बाहर नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं दूध है बाहर, कहीं बकरी काट रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, उल्टा सीधा करके बैठते हैं ना ज्यादा। वो आपका मन का खेल है सब। हकीकत में गहराई से जाओगे तो तब पता लगेगा, नहीं तो ये पता नहीं लगता है। समझ गया ना? सबसे बड़ा दूध क्या है? आपका बुरा विचार सबसे बड़ा दूध है। संगेश के छस के अनुसार, संगेश का छस में सबसे बड़ा दूध क्या है? अपना बुरा विचार है। बुरा विचार, समझते ना? घर गृहस्थ के लोग हैं, कभी कभी बुरा विचार आता है, मेरे को पता है आता है, लेकिन उसको ऐसा पाल के मत रखो कि वो जन्म जन्मों तक आपको गलत फल देने वाला बने। ऐसा पाल के नहीं रखना चाहिए। वो जैसा मिट्टी के अंदर लकीर खींचता है ना, उस तरह के विचार रखना चाहिए। वो तो फिर बाद में मिट जाता है ना, थोड़ा बहुत रहता है, फिर नॉर्मल हो जाओ। ऐसा नहीं कि हम लोग तो कहा जी पूरा पकड़ के रखते हैं, पकड़े और मरते मरते तक भी उसको याद करते थे, वो तो उसने ऐसा किया था। ऐसा करने से आपका नुकसान हो गया, किसी का नुकसान नहीं होता है। कहने का मतलब संगे चुमनिंदे ने छस का लम दिखाया था, इसलिए शास्ता बोलते हैं उसको। पाली में सत्था देवा बोलते हैं, सत्था। संगे चुमनिंदे क्या है? संगे चुमनिंदे भगवान है। क्योंकि इन्होंने क्या किया? पूरा नमतों का भगन कर दिया। भगवा मतलब क्या होता है पता है? जिसने राग का भगवन कर दिया, द्वेष का भगन कर दिया, ईर्ष्या का भगन कर दिया, है ना? त्वचा शेतम तिम उठातो अचल बोलते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, इन सारी मोह, इन सारी चीजों का भगन कर दिया। भगन मतलब चम सर है। वान मतलब उनके अंदर ज्ञान है। गलत विचार का भगन कर दिया और ज्ञान से युक्त हैं, इसलिए भगवान कहते हैं। ये जो भगवान का परिभाषा है ना हमारे यहाँ संगेश में, वो भगवान श्री कृष्ण वगैरह, राम वगैरह, शिव जी के ऊपर नहीं उतरता है। भगवान है, हम क्यों निंदा करना? अपना अपना संस्कृति है, अपना अपना मान्यता है। लेकिन भगवान बुद्ध के ऊपर जो भगवान का परिभाषा है ना, वहां उतरता नहीं है। कहाँ है? वो तो तलवार लगा के कुरुक्षेत्र बना रहे हैं, रामायण में श्रीलंका को जला रहे हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन हम निंदा नहीं करते, अपनी परंपरा है, संस्कृति है, चलाते रहो। लेकिन संगे चुमनिंदेश वाला भगवान है ना, वो अपने अंदर राग, द्वेष, मोह का भगन कर दिया, इसलिए भग है। वान का मतलब संपूर्ण ज्ञान से युक्त है, इसलिए भगवान है बोलते। समझ गए ना? भगवान है। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो। अरहत है, विद्याचरण संपन्न है। विद्या मतलब पूरा ज्ञान से युक्त है। चरण मतलब आचरण से परिपूर्ण है। आचरण में शालीनता है, शीलता है। ओशो और क्या कहते हैं, जैसे सत्यनारायण गोयनका जी है ना, विपश्यना, उन दोनों में बहुत फर्क है। ओशो में शील नहीं होगा ज्यादा, नाचो गाओ उल्टा सीधा सब है, बोलेगा बहुत सुंदर। फर्क है, हम उनकी निंदा नहीं करते हैं, लेकिन उनका ऐसा है। लेकिन ये ना विपश्यना में जो सत्यनारायण गोयनका जी वगैरह दिखाते हैं ना, उसमें सुजन सुनसे करके जाना पड़ता है, कैसूर का दम्बा लेके जाना पड़ता है। फर्क है ना? तो ये है संगे चुमनिंदे। रिक्पादम जपसु देंबा है। रिक्पा मतलब ज्ञान से युक्त है, जपसु देंबा मतलब पूरा आचरण से युक्त है। शरीर के आचरण, शरीर से पाप कभी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, नशा पत्ते नहीं करते, है ना, चोरी नहीं करते, मुंह से झूठ नहीं बोलते हैं, कड़वा नहीं बोलते, बेकार की बातें नहीं करते, दूसरों को नहीं लड़ाते, मन के अंदर लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, वो तथागत है, संगे चुमनिंदे। आप कल्पना करो, इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्मा संबुद्ध है वो, यंग प्रजोपे संज्ञे, ये पाली है ना, सम्मा संबुद्ध यंग प्रजोपे संज्ञे, सम्मा विद्याचरण संपन्नो सुकुतो हैं, उनका चाल डाल सब बहुत सुंदर है। क्योंकि अंदर राग द्वेष कुछ है ही नहीं, तो चाल डाल सुंदर ही होगा ना। वो चलते चलते भी लोग आकर्षित हो जाते हैं, इतना उनके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है।
सुगतो, सुगतो को देवरशिपा बोलते हैं। लोग विदु हैं वो संगे चुनने। लोग विदु क्या है? जिक्तेन क्षमता। लोग मतलब जिक्तेन, विदु का मतलब क्षमता। सब कुछ वो जानते हैं, किस कर्म से क्या फल होता है, किस कर्म से क्या उसका परिणाम होता है, सब सूक्ष्म रूप से जानते हैं, इसलिए जिक्तेन क्षमता। कि वो दुर्वा है। पुरुष पुरुष धम्म मतलब कि वो किस तरह के व्यक्ति को किस तरह से प्रवचन देकर के उनका कल्याण किया जाए, वो उनके अंदर ज्ञान है। चेवु दुर्वा, खालो जुर्वा, लाना मेपा, अनुत्तर है। लाना मेपा, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं है। ये झूठ नहीं बोल रहा, हकीकत में बुद्ध से ऊपर कौन हो सकता है बताओ आप? बुद्ध में नहीं कहेंगे, संगीत नहीं कहेंगे मैं सबसे ऊपर हूं, अनुत्तर है वो, लाना मेपा है। अनुत्तर सम्मा सम्मा। पहले मैं अभी बर्मा में गया था ना, बर्मा में गया, विपश्यना किया 11 दिन तक जंगल में, बगो नाम के था, गेलोंग बैठा हुआ है, 700-800 गेलोंग के बीच में बैठा हुआ। वो बर्मा पर अच्छे लगा के, बर्मा का ढांचे लगा, बड़ा आनंद है। सुबह 3:30 बजे उठना, 6 बजे आएगा तो हाथ में लुंगजेट देता है, समझो कर नहीं जाना, चुपचाप कुछ भी नहीं बोल के। जिस दरवाजा पर पहुंचे वहां लुंगजेट में जो मिला वो लेकर के खाना खाना, आर्य मौन खाना खा के फिर सारा दिन ध्यान में रखना। भोजन के समय फिर जाना लुंगजेट लेके, 12 बजे के करीब है ना, वो खा लिया फिर चुप। रात को खाना नहीं होता है पता है ना। फिर वो 11:30 बजे तक 11 दिन सत्य पठन का हो गया। क्योंकि कहते हैं कि जो भिक्षु लोग सत्य पठन 11 दिन का करते हैं, आम आदमी 45 दिन करने के बराबर है, बताया उन्होंने। अनुभव है ना, तो अनुभव के तौर पर फिर वहां पर जब हम पूजा करते थे तो सुबह उठ करके संगीत चंदन देव जी का पूजा किया मैंने, उनके साथ किया। वो आ गया मेरे मुंह में, दिमाग ने पकड़ दिया। सुबह उठ के नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धा बोलते। क्या है वो? चुमदेन दे देजी शिवा डाचुम, सेम का सेम है, भाषा में फर्क है, समझ गया ना, भाषा में फर्क है। उसके बाद इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध विज चरण संपन्न सुगतो लोक विदु अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी सत्ता देवा मनुष्य नाम बुद्धो भगवाती। ये बुद्ध क्या है? चौथ के अंदर हमजे चंबाला जा जरो तेरा संजय चुमने दे देने देशे शिव ता चंबा यहां पर तो बे समझे चाचा थुबा, ऐसा है। चिपा भाषा अलग है। अब हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, ये तो हमारा छय नहीं है, ऐसे बोलेंगे ना लोग। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटके हुए हैं? छय ये उच्चारण थोड़ी है, छय तो सब तुमसे करना है, ये हमारा छय नहीं है। क्यों? प्रार्थना दूसरा कर रहे हैं। प्रार्थना क्षय नहीं होता है, प्रार्थना करते समय आपका मन कैसा है वो क्षय होता है। आप तो है मन प्रार्थना करते समय आपकी मनोवृत्ति कैसी है। अब ये पाठ कर रहे हैं तो उस समय आपका मनोवृत्ति शुद्ध और पवित्र है और बुद्ध के प्रति कृतज्ञता का भावना है कि देखो यार, महान गुरु जी ने क्या टेक्निक सिखा के रखा लोगों को विकार से दूर जाने के लिए। आनापाना सती विपස්සना, और जितना भी प्रार्थना भी करे भी तो ऐसा है। कहीं कहीं ऐसा होता ना, मैंने सोचा था बुद्ध हर एक बर्मा के हर एक उसमें जो है लगाम में जो बहुत बड़ा बड़ा बुद्ध का मूर्ति है। विपස්සना सेंटर में भी बुद्ध का मूर्ति है। यहाँ इसलिए उसका प्रावधान नहीं है क्योंकि यहाँ अनेक लोग आते हैं ना, बुद्ध का मूर्ति लगे तो लोग डर जाएंगे, तो बुद्धिस्ट बना रहे हैं बोल के, इसलिए लोक कल्याण की दृष्टि से ऐसा है। समझ गया ना? बुद्ध का मूर्ति का पूजा करना गलत बात नहीं है, वो कृतज्ञता है। संगीत चंदन के प्रति हम लोग उनके प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है, इसलिए उनके प्रति नमन करना कोई बुरी बात नहीं है। समझ गया ना? तो ये मैं बता रहा था। फिर क्या बताया? तुम्बा बोलने से ऐसा है। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा? मन ही है। मन से अच्छा कर्म किया तो उसका फल अच्छा मिलेगा, मन से बुरे कर्म किया तो उसका कर्म बुरा मिलेगा। अब दूसरा श्लोक को पढ़ता हूं मैं। अब ये क्या है? पाप के बारे में बताया ना, अगर पाप करोगे तो उसका फल ऐसा मिलेगा। तो डाचंपा का मैंने एक उदाहरण दिया। इसके बाद दूसरा अच्छा वाला आएगा। थोड़ा यहाँ क्या कहते हैं, एक लाइन बदल जाता है। बुरे कर्म का बुरे कर्म फल होता है, जैसे रथ के घोड़े के पीछे रथ के पहिए लगा होता है। अब यहाँ वो बोलेंगे अच्छे कर्म का अच्छे फल होता है, जैसे आप चलेंगे ना, आपका छाया आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसी तरह ही आप अच्छे कर्म करेंगे ना, आपका छाया कसम युने रंग कसम छाया कसम एके मबियो दुआ धम कमंगन कसम युने रंग हलिया कसम छाया एके बदो दो होने ही धम फलंगे एके परतो रिंग होने संगे से सुमतोष।
덴다 숨이도 나람소 레가 상보치 레나 나람소 시 서비제라 아니 레가 상보기 데보디 레바 상보 용기레 간이진레 레스나 나람소 때나 파 bombajamle pa de ngaram so me dimna yerwa dimna de namdo dogitawa de nangshi lega zambu ki debu zambu de namdo namyana dal meses namdo yongsire tena sungde sangi chomden degi kewa chunam yije rangshin de hinni zoshi monla do galte hinni raptang be mechang yani jechang rum dela dei dewa thop pani to dungal budaya dela dei dewa thop धीमा योलवरा मिंजुर सिंह जैसा आपका परछाई कभी आपसे विदाई नहीं करता साथ चलता है उसी तरह उसका देवो मिलेंगे बोलके ऐसा है अब यहाँ एक कथा है कथा कैसा है संगीत चमनिंदे ये भी न्यायत में बताया संगीत कहाँ सुनसी किया है न्यायत में न्यायत के टोंजर चंपा में सुनसी किया था जब संगीत चमनिंदे श्रावस्ती में थे तो उस समय एक ब्राह्मण था वहां पर एक ब्राह्मण था ब्राह्मण ढंग से एक ब्राह्मण था तो ब्राह्मण बहुत कंजूस था कैसा था बहुत कंजूस था उसका नाम अदिन सरना था उसका नाम अदिन पूर्वक बन के एक ब्राह्मण था उसका इकलौता लड़का था उस ब्राह्मण का एक लड़का था वो लड़का जो है जब उसका शादी करने का समय आ गया तो वो बहुत कंजूस था किसी सुनार को गहने बनाने के लिए देगा तो पैसा बहुत लगेगा ना उसको बनाना कुछ नहीं आता था खुद ही ऐसा ही मोटा मोटा खुद ही बना करके ताकि पैसा खर्च ना हो जाए ऐसा खुद बना करके तो ऐसा ही छोटा मोटा गहना बना के शादी कराया था उस लड़के का वो तो ठीक है कंजूस था ना किसी को बनाने नहीं दिया था क्योंकि पैसा खत्म होगा सोच कर कंजूस था फिर एक दिन उसका लड़का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया पे नशा दुखजा चिफोसों पे बीमार हो गया बहुत बीमार हो गया तो इतना बीमार पहले उस जूट मुट का ऐसा ही आंवला वगैरह तोड़ करके उसको पीस करके हरड़ा ब्रेड़ा वगैरह तोड़ करके ऐसे पीस करके देना शुरू किया लेकिन उसका हालत खराब होते अब वो मरने वाला बन गया वो लड़का एक इपटोक छंग शीविक दिम्पक मरने वाला जैसा हो गया तो उसको लगा कि इस दवाई से कुछ नहीं होगा फिर एक वहां अमजीता बोलते हैं वैद्य था उससे पूछा कैसा है उसको नहीं बुलाया उसका दवाई फिर उसको पूछ करके कैसा दवाई बनाना खुद नहीं बना करके उस दवाई को बना करके उसको खिलाने का कोशिश किया वो ज्यादा हो गया क्या हो गया वो तो फिर तो बुरा हाल हो गया बच्चे मरने की तरह हो गया ये अदिन पूर्वक नाम का ब्राह्मण है फिर उसने क्या किया अब मरने वाला है तो उसके अंदर एक लोभ था डर था कि अगर ये बेटा मेरा अंदर मर जाता है कमरे में तो लोग आएंगे तो मेरे सामान को देख लेंगे सोना चांदी क्या क्या पैसा वैसा क्या रहता है उसने बेटे को चरपाई से उठा करके बाहर आंगन में रख दिया उस लड़के को है ना आंगन में रख दिया सौभाग्य ऐसा हुआ कि उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध संगे चुमदेंदे गेलोंग अब्जा के साथ 500 भिक्षुओं के साथ उसी रास्ता से आ रहे थे संगे चुमदेंदे वही लम से फेफसे कर रहे थे आ रहा था वो तड़प रहा था ऐसा आंखें खुल गया उसका संगेश का दर्शन हो गया तो उसके मन में एक पूरा पुलक रोमांच आ गया पुलक रोमांचित आता ना जो मेडिटेशन करते समय उसका कुछ संसार होगा ना उसके संगेश का दर्शन करते उसके अंदर एक जागरूकता आ गई है तो सहजता आ गया सजग भाव आ गया तो उसी के बीच उसका प्राण छूट गया उस ब्राह्मण के लड़के का कल्याण हो गया वहां से गुजर करके देवलोक में 63 बोलते हैं तो उसको छस में सुमचु तसुम बोलते हैं सुमचु तसुम के लायुल में वहां पर पैदा हो गया फिर संगीत में बताया उसका तो वहां जन्म हुआ फिर ब्राह्मण हैरान हो गया मैंने अपने जीवन में संगीत चुमदिन देश को एक दाना चावल का नहीं दिया बोलता है एक दाना चावल का नहीं दिया एक बूंद पानी नहीं पिलाया संगीत तथागत को उस दिन उसके मन में तत्पा आ गया आ गया कल के दिन संगे चुमदिन दे गेलोंग के सब अपने घर में बुलाता है पिशु के साथ अपने घर में बुलाता है और भोजन परोसता है फिर उस समय संगेश के पास छक करके पहले छक से कुछ नहीं करता था इज्जत ही नहीं देता था संगेश को फिर छक करके बोलता है जी आप तो बड़ा अतुलनीय गुरु हैं आप तो महान हो आपने जिंदगी में आपको मैंने एक दाने चावल का नहीं दिया एक बूंद पानी का नहीं दिया आपने मेरे बेटे का कल्याण कर दिया फिर बुद्ध जी कहते हैं इसमें तेरा कोई रोल नहीं है इसमें तेरा कुछ लेना देना नहीं है तेरे बच्चे की मन से लेना देना है जो तेरा बच्चा गुजरा ना तेरा लड़का गुजरा उसकी मन से लेना देना है जब मैं वहां से आ रहा था तो तुम्हारे लड़के के मन में पवित्रता था शुद्धता था
पूरा शुद्ध चित्त था, निर्मल चित्त था। उस क्षण उसने मुझे देख लिया, उस अच्छे कर्म से उसका जन्म देवलोक में हो गया। अब समझ देखो क्या होता है, यह है दंपत संदेश का छस ऐसा होता है। तो इसीलिए कहते हैं छुनम हिची रंगजिन के हिनी चोजी मोंदुटो गाते हिनी रब्दंग बे मेचंग यानी जेचंग रूम देला देई देवा तो दिमायुल ब्रह्म जुर्जिन। इस तरह का अच्छे जो कर्म करते हैं ना हम लोग, अच्छे सोच विचार छस है। क्यों छस है? अच्छे सोच विचार से मुंह से कभी गाली बकेगा ही नहीं, मीठा वचन बोलेगा, खुद भी प्रसन्न, दूसरों को भी प्रसन्न करेगा। छस हो गया। किसी का कोई गलत किया नहीं तो छस बन जाता है। विचार पवित्र है, मुंह से मीठा बोल दिया। और शरीर से हिंसा तो कर ही नहीं सकता, व्यभिचार तो कर ही नहीं सकता है, चोरी तो कर ही नहीं सकता। छस हो गया ना। सेम का गेवा होगा ना, सेम जो है पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो लू और ना दोनों गेवा हो जाता है। रंगी सेमनी योंसु दुल धीनी संगे तेंपाही, जो रंगी सेमनी योंसु दुल धीनी संगे तेंपाही बोल के संगे का छसा था ना, दीपा चियाम बिजाजिंग गेवा फुंसुम छोपरचे रंगी सेमनी योंसु दुल धीनी संगे तेंपाही। एक दिन संगे चुमदेंदे न्यायत में जा रहे थे। न्यायत में जाते समय जब वो गुजर रहे थे, एक अमा बुढ़िया माता जी वहां सामने आ गई। बहुत बुजुर्ग थी वो, आ गई, शायद 90-95 साल की थी। संगेश का दर्शन हो गया, माता जी बहुत खुश, आज तो संगेश का दर्शन हो गया। फिर संगेश अकेले आ रहे थे, संगेश के साथ कुछ गेलोंग लोग थे, शहरी मंगल जी बुआ पुंगाओ वगैरह आ रहे थे। तो संगेश का दर्शन किया, बहुत खुश हो गई। शुद्ध मन, पवित्र मन माता जी का, संगेश का दर्शन सामने। तो संगेश से नमस्कार करके कहती है, बुद्ध कहते हैं, बनते कहते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं, मैं ज्यादा तो नहीं समझ पाऊंगा, धर्म ज्यादा तो समझ नहीं पाऊंगा, कृपा करके छोस को कम शब्दों में बता दो, मेरा बेटा, जैसा बोलते हैं संगेश का अमा गेमो जो है वो ऐसा बोलते हैं न्यायत में, ये भी नियम नहीं होते। फिर संगेश ने अमा का सम को देखा कि ये तो पूरब से पका हुआ है, इसके अंदर अच्छा संस्कार है, बहुत डिटेल में जाएगा तो ये नहीं समझेगी, संक्षेप में बोले भी तो समझने वाली है। पता लगा संगेश को ज्ञान का पता था। तो वो बोलते हैं, संगेश बोलते हैं, सब पापस अकरनम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपन्नं एतं बुधानुशासनम बोलते हैं। उन दिनों में ये भाषा समझ में आता था, समझ आ गया। किसी भी पाप को नहीं करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को, अपने मन को शुद्ध रखना, यही संगेश का छस है, यही संगेश का तेंपा है। मैंने तो पाली में बताया ना, क्या बताया? दिग्बाचियम मिजाजिन केवा फुंसुम सोब्राचे रंगी सेमनी योंसु धुल धीनी संगे तेंपाही। आमा को समझ में आ गया, उसी समय आमा गिंजुक हो जाता है। गिंजुक दांछिर होंग दांछिर मांग दां दा चंपा दां आता है ना यमपति में, ये गिंजुक में पहुंच गया। गिंजुक मतलब छस का न्यमलेन का पहला स्टेज में पहुंच जाती है, उसी समय उस माता का कल्याण हो जाता है। हमारे तथागत बुद्ध इस तरह से प्रवचन करते थे। अब बताओ इसमें अमृत है कि नहीं है? बताओ क्या कमी है? देखो संघर्ष के छस में आज दुनिया में समाज अस्त व्यस्त हो चुका है। समाज क्या है? अस्त व्यस्त हो चुका है। परिवार में झगड़ा फसाद, गांव में झगड़ा फसाद, तू छोटा मैं बड़ा, मेरे पास पैसा ज्यादा तेरे पास पैसा कम, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। जिला में, राज्य में, देश में, संसार के सब लोग तो मिसाइल बना रहा है एक दूसरे को मारने के लिए। अंदर ना प्यार की भावना, ना मोहब्बत की भावना, ना प्रेम की भावना। अगर ऐसा रहे ना, बहुत जल्दी ये संसार खत्म होने वाला है। इस तरह का अमृत वाणी काश कोई समझ जाता तो कितना कल्याण हो जाता है। तथागत भगवान बुद्ध का कहा हुआ रास्ता भारत के लोग ही भूल गए। जिस देश में भगवान बुद्ध जी का जन्म होता है, जिस देश में भगवान बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया है, जिस देश में तथागत बुद्ध ने अमृत वाणी का प्रवचन किया है, जिस देश में संगे चुमदिंदे ने अपने शरीर छोड़ा है, समझो ढूंढो बंधेंगे शरीर छोड़ा है, उसी देश के लोग संगेश को भूल रहे हैं। मुझे तो अचंबा हो जाता है, मैं तो हैरान हूं, मुझे बहुत अजीब लगता है। हमारे हिमालय छोटा सा राज्य है जहां पर 1 लाख लोग भी नहीं रखते हैं, किन्नौर जैसे में 84,000 भी नहीं है, इतना 84-85,000 कुल है। हम लोग
जात से बुद्धिस्ट थे, अपने आप को सौभाग्य माने, लेकिन वहां भी अगड़म बगड़म जा करके कौन समझता है? इतना पवित्र संस्कृति, हीरे से भी कीमती संस्कृति जो अपने कल्याण के लिए भूल गए लोग। उसी तरह स्पीति में हो रहा होगा, लाहौर में हो रहा होगा। क्यों? पैसे की होड़ में है, कंपटीशन की होड़ में है, छोटे बड़े के होड़ में। कहां छोटा बड़ा है? पैसा क्या देगा? मर जाओगे तो पूरा बैंक बैलेंस यहाँ रह जाता है। अच्छी तरह से खाना नहीं, पीना नहीं, कल के लिए, कल के लिए। कल है क्या? कल किसने देखा? कल तो है नहीं है। हो तो खाओ पियो, दान करो, चैरिटी करो, अच्छे कार्य में, अनाथ आश्रम में जाओ, जिनके माता पिता नहीं है वहां खाना खिलाओ, उन बच्चों को सुकून मिलता। तो समझना कि भगवान बुद्ध की उस करुणा में ही, भावना से नहीं, बच्चों का कल्याण कर रहा। समझ गया क्या करते हैं हम लोग? कोई भी नंबर मुझे जो भी यहाँ बताएंगे, मनी लगाना चाहिए, कोरा लगाना चाहिए, छत करना चाहिए, छोले जलाना चाहिए, दर्जों करना चाहिए, लगाना चाहिए, करना चाहिए। अरे यार, उससे पहले मन की स्थिति तो अच्छी हो। मन वाला पूरा बिगड़ेल सांड की तरह बना हुआ है और चला हुआ छम्मे जलाने। छम्मे जलाते समय शांत होके जाना होता है। एक माता जी के धक्का मार दिया, माता जी का टांग टूट गया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। छम्मे जलाए तो मेरा कल्याण होगा, ऐसा सोचते हैं ना? ऐसा तो नहीं करता होगा। इस तरह का मन के अंदर भावना आता है, वो संगीत का छस नहीं है। इस अमृत वाणी से समझो दम पद। संगीत चुमनिंदे क्या कह रहे? संगीत चुमनिंदे के अंदर कितना निंजे है, फर्क नहीं पड़ता। सामने अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा, सबके प्रति एक दृष्टि, जैसे सूर्य की किरण सभी के प्रति एक जैसे पड़ता है। उस तरह की भावना हम लोग को सीखना चाहिए। एकदम नहीं होता है, सीखना तो चाहिए ना यार। हम लोग मानव है, पशु थोड़ी ना। और कहते हैं हमारे सभी के घरों में युमपति होता है, गैतुंबा होता है, अरमाली में सजा के रखते हैं, सुबह छक करता है, माने करता है, पर अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले है क्या है उस चीज में? ये चीजें है ना बोल के मन को तो सुधारो ना। अपने घर को फुलवारी बनाओ, अपने गांव को फुलवारी बनाओ। कांटे का शहद मत बनाओ, कांटे नुकसान करेगा। ये बुद्ध अग्नि से हम लोग को समझना चाहिए। जैसे अभी देखो माता जी के प्रति कितना संगीत चुमनिंदे का कृपा है, दया है, निदान है ना। माता जी संगीत जी को कुछ देना है, लेना देना कुछ नहीं है, बस संगीत के मुंह से अमृत बरसता है। उनके मन अमृत का कुंड है। यह अहिंसा परमो धर्म संगीत चुमनिंदे ने सिखाया है। आजकल लोग बताते हैं ना अहिंसा परमो धर्म, कुछ यहाँ का है वहां, बिल्कुल नहीं। एक ही मानव पैदा हुआ संसार में जिसने अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया है, वो संगीत चुमनिंदे जी थे।